about our country's identity, unity, integrity, and sovereignty. As we know that democracy is a good governance system. However, it's not a cheap system of governance. For example, the Lok Sabha election of 2019 has spent approximately 20,000 crores or 60,000 crores on to the conduction of the election. But if you could add in the amount of the local elections or the municipal state election, the amount would be rising to 2 lakh crores. You were shocked, weren't you? That's a huge amount. And if we conduct all these elections altogether, then our country could save approximately 1/3 of the amount. Let's look onto the economic factor, how useful those wasteful amounts are. That if we could spend the 10% of the amount onto the flood occurred area of Mithilanchal, then the flood could have ended up lower. And if we could put that 10% of the amount onto the research and technological development center, then India's fifth generation fighter jet could be formed in 2028 rather than in 2035. Since 30 years of conducting elections, we have elections each year, not just one election per annum, but multiples. Now let's talk on to the certain administrative businesses such as the policy paralysis and system paralysis. In the policy paralysis, the policies are being delayed due to the conduct of election, and in system paralysis, the police officers or teachers are being engaged due to the conduction of election onto the educational institution, which leads to a troublesome in the study of the students. And I would also like to include that this may further leads to a haphazard polarization. It's different people having different opinion and leads to a clash among them and a lack of unity among them. Also, I want to say that the opposition also says that one nation, one election may further lead to a dictatorial system of government. However, as an individual, it's our obligation towards our nation that India should be a federal country and it should not be a unitary one. And also, most significantly, we must take care that the local bodies must not be suppressed under the burden of the mighty parties. Lastly, I want to conclude my speech with वर्षों से है पथिक बना, अब ठहराव मांगता है देश. वर्षों से है पथिक बना, अब ठहराव मांगता है देश. संविधान के छतनातम की छाप मांगता है देश और देश को देश से जोड़ने हेतु एक देश एक चुनाव मांगता है देश. Thank you for hearing my speech with all your patience. Jai Hind. बहुत खूब तानिया प्रसाद. मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट को आमंत्रित करूंगी जागृति कुमारी, सीरियल नंबर 4. सबसे पहले मैं आप लोगों का नमस्कार कहती हूँ. मेरा नाम जागृति कुमारी है. विकसित भारत युवा संसद 2025 में एक भारत एक राष्ट्र एक चुनाव के में भाषण देना चाहती हूँ. भारतीय संविधान में चुनाव परिषद 1/2025 में इस चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किया जाता है, जिसमें 1952 में सर्वप्रथम आम चुनाव किए गए थे, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपयों की खर्च हुई थी, जिसमें बजट को आंकड़ा मानते हुए विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एमएन डॉक्टर हनीफ ने जिसका डिजाइन अप्रोच किया था. भारतीय संविधान में 15 अगस्त 1950 को प्रत्येक वयस्क मताधिकार को चुनाव देने का मताधिकार मिला था, जिसमें 18 वर्ष के वयस्क मताधिकारी अपना वोट दे सकते हैं. और विकसित भारत में एक इलेक्शन करवाना चाहिए जिसमें राज्यसभा, लोकसभा सभी का चुनाव एक साथ हो. तो जैसे कि केंद्र का और विधान परिषद, उपराष्ट्रपति,
रविकांत कुमार सीरियल नंबर 5। बार बार के चुनावों से ना बचे समय और धन, एक राष्ट्र एक चुनाव, यही है जन जन का मन। Honored dignitaries and all my dear fellow youth, I am Ravikant Kumar from Samastipur. Today I stand before you all to present my views on One Nation, One Election, a path to Viksit Bharat. Imagine a nation where the wheel of progress never stops running, where the governance is continuous, where the resources are allocated towards the development. My dear friend, this is not a distant dream. This is the dream of one nation, one election. Just think about it. How much time and money is wasted in conducting election repeatedly? When election is held simultaneous, we can use this time and money in the development of our country. We can improve our education, we can improve our healthcare, we can improve our infrastructures. Also, one nation, one election potentially boosts voter turnout in our country by just simplifying the election process, my dear friends. When we talk about election, we cannot forget Mahatma Gandhi. As Mahatma Gandhi once said, the best way to find yourself is to serve yourself for others. But my dear friends, how can our leaders will serve us if they are continuously busy in the election campaign? This Viksit Bharat needs a stable governance, uninterrupted political implementations, and long-term developmental goals, not short-term electoral gain. So we can say that one nation, one election is not just about the slogan. It is the aspiration of us. It is all about our youth. It is about our future. It is about our country. So we all must come together to rise above the partisan politics and combine to forge a consensus which somehow prefer nation growth. At the end, I just want to conclude by saying, बार बार के चुनावों से होता है हमारे देश का नुकसान। एक चुनाव बनाएगा हमारा भारत महान। जय हिंद। The next participant is Kishan Seth, serial number 6. Kishan Seth. लोकतंत्र की पहचान, एक चुनाव एक संविधान, समय और धन बचाना है, भारत को विकसित बनाना है। I, Kishan Seth, I stand before you not as a citizen of India, I stand as a representative of a vision of Viksit Bharat, a Bharat where Prime Minister Narendra Modi see a vision to empower our country till the end of 2047 as a unified superpower country. Now, what does one election and one nation, one election mean? One nation, one election means to save country resources, growth opportunities, time, money, everything which is utilized and served in this nation. If we talk about the government problem that we are facing today, that one election happens every few months continuous. If we talk about the election happening in one state, in few months after another election happening in another state, what we consume if we do one nation, one election, one nation. If we focus on that, we will conclude such things like we can save money, resources, allocation, and the leaders of other nations focus on the decades of century planning for this. But if we talk about our country, our representatives, our leaders, they focus, they force to plan themselves till next election only.
As we say, I come from the land Bihar Samastipur, where the great freedom fighters like Dr. Rajendra Prasad and Jayaprakash Narayan, who envisioned the democracy. And I ask a question as a son of this soil, अगर लिच्छवी गणराज को एक संगठित सत्ता मिल सकती है तो हमारे भारत देश को क्यों नहीं? Like the country US, UK, Germany and South Africa, if they can do it, why we can't? People argue that it will weaken the federalism. It will weaken the federalism. What the question arises? What the strong governments did? By the concluded, I want to say that एक भारत श्रेष्ठ भारत. Thank you. Our next participant is Roshan Kumar, serial number 3. Roshan Kumar. 3. Ranjan Kumar, serial number 7. शुरू हुआ सफर एक नए उजाले का, शुरू हुआ सफर एक नए उजाले का, लोकतंत्र के नभ में एक दीप जलाने का, वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना संजोया था, आज वक्त आ गया है उसे हकीकत बनाने का। बीना की वाणी की अधिष्ठात्री मां शारदे, भारत माता एवं यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय माताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सिर्फ एक नीति पर चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य को एक नया आकार देने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल विचार विमर्श का नहीं बल्कि संकल्प लेने का है, एक ऐसा संकल्प जो लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। आज अभी हाल फिलहाल में देखा गया जब 2024 का चुनाव हुआ तो खर्च करीबन 1.35 लाख करोड़ गया और जो हमारे देश के प्रथम चुनाव के मुकाबले 11,000 गुना अधिक था। तो सवाल उठता है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी इतनी तेजी से बढ़े? नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास केवल और केवल 110 गुना हुआ। वही हमारी साक्षरता दर का विकास केवल 4.5 गुना हुआ और हमारी जीवन प्रत्याशा मात्र 2.5 गुना बढ़ी। लेकिन अगर इसका मुकाबला किया जाए, इस बात से किया जाए कि हमारा प्रथम चुनाव जो कराया गया उसका मुकाबला और अभी के मुकाबले में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन आज भी देश उस तरह का विकास नहीं कर पाया है, आज भी देश उस तरह के मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, भारत जैसे देश में यहाँ हर साल एक नया चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव अलग, राज्यसभा चुनाव अलग, नगर निकाय चुनाव अलग, यहाँ तक कि पंचायती राज चुनाव भी अलग। हर साल चुनाव, हर बार चुनाव, हर बार आचार संहिता, हर बार विकास कार्यों पर रोक। क्या ऐसी लोकतंत्र विकासशील भारत की तस्वीर हो सकती है? ये सवाल है। अपनी अभिव्यक्ति को अंतिम कड़ी पर लाते हुए मेरे यही विचार है कि हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, बने अखंड आर्यावर्त हमारी महान पहचान। विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा चंद्रयान, विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा चंद्रयान। अब चिड़िया नहीं सोने का बाज बनेगा हिंदुस्तान, सोने का बाज बनेगा हिंदुस्तान। The next participant is Himanshi, serial number 9. Himanshi, serial number 9. One election is not just a slogan. One nation, one election is not just a slogan. It's a vision for a better India, where elections are a celebration of democracy, not a disruption. A very good afternoon to each and everyone present over here. I am Himanshi from Women's College, Samastipur, and I'm here to present my views on the topic One Nation, One Election. Here in India, the human mills are bulging. There is a talk about one nation, one election. Well, what is that?
Election Commission report, it says that the 2019 election cost around 60,000 crore rupees. My body friends, I just want to make a note that we are still living in a developing nation. We are not living in a developed nation. If there were one nation, one election, we could have saved money across 12,000 crore rupees. And we can further allocate this in medical sector, healthcare sector, in education sector, and whatever. If one nation, one education to be prevailed in our nation, we would have better governance system. It's like you campaign once in 5 years and you work for the rest of the time peacefully. But here, you're always in campaign mode. Every day we can see that in some part of the country elections are going on. This is going to waste not only their time but also our time. We are students. Our school colleges are getting closed. Our professors are getting involved in electoral works. Our time is getting waste. And remember, we are human resource. Don't waste our time like this. Also, the Election Commission report says that the frequency of election creates a multiple opportunities for what? For vote buying, for deployment of money resources, for misuse of state resources. At last, I want to conclude by saying that one nation, one election is something which has the potential to change India's electoral landscape. You need to make something which will all party consensus. You just need to think about the 22nd Law Commission report. And at last, but not the least, you must create public awareness through media deliberations and to make our country a Vishwaguru again. Thank you so much. Serial number 10, Ganesh Rajat. कृषि अनुसंधान की जननी संघर्ष और सृजन की भूमि समस्तीपुर को सादर नमन। जहाँ से फसलें उगते हैं वहाँ विचार भी उठेंगे। यह समस्तीपुर की धरती है, यहाँ से बदलाव भी उठेंगे। A very good afternoon everyone. This is Ganesh Rajat from Rajendra Agricultural University, Pusa, Bihar. Today our topic is a one nation one election. When I look at the topic one nation one election, I see two major aspects. First, लोकतंत्र की स्थिरता और दूसरा आर्थिक बचाव। हमारा देश भारत एक अखंड भारत है दोस्तों, जहाँ पे हर साल हर राज्य में अलग अलग चुनाव होते रहते हैं दोस्तों, जिसके कारण हजारों करोड़ों रुपये और आर्थिक श्रम की हानि होती है, जिसके कारण नीतियाँ अधूरी रह जाती है और बदलाव का कार्य धीरे हो जाता है। सन 1952 से 1967 तक हमारे देश में एक ही चुनाव होते थे, विधानसभा और लोकसभा में। पर हाल ही में नीति आयोग, लॉ कमीशन और कोविड गजट में यह पेशकश की गई है कि फिर से वन नेशन वन चुनाव का प्रस्ताव दिया गया है। हमारा अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह भंग हुआ? हमारे अतीत में 37 करोड़ जनता और कुछ राजनीतिक पार्टी के होते हुए भी यह सफलतापूर्वक काम नहीं की थी, जिसके कारण यह बंद हुआ। आज वर्तमान में 144 करोड़ आबादी, 6 राष्ट्रीय पार्टी, 58 राजकीय पार्टी और 2763 अन्य पार्टियों के होते हुए भी यह बात उठाया गया है। लेकिन यह कितना तर्कसंगत है दोस्तों? हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां आए दिन पेपर लीक होने की सूचना मिलती है। सरकार से युवाओं मांग उठाते हैं एक नेशन वन एग्जामिनेशन, बट ये संभव नहीं हो पाता है दोस्तों। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये संभव है, क्योंकि दोस्तों जवानी जिधर चलती है उधर, जिस ओर जवानी चलती है दोस्तों उस ओर भारत का भविष्य चलता है दोस्तों। एक लाइन बोलना चाहूँगा, अब बदलाव की बारी है, सुशासन की तैयारी है, जन का एक सपना है, एक राष्ट्र एक चुनाव अपना हो। धन्यवाद। Thank you, Ganesh. The next participant is Shruti Sinha, serial number 11. Shruti. Of UKPD College, here to talk about the topic One Nation, One Election, a step toward Viksit Bharat. On 17 December 2024, a bill was introduced in the Lok Sabha for the implementation of One Nation, One Election. Now one might wonder, what is this One Nation, One Election concept? Well,
85 गणमान्यजन, नायकगण, युवा संसद के प्रतिभागी एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं चंदन कुमार समस्तीपुर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को बिहार स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारा भारत विविधताओं से भरा है, एक महान दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों में से एक है, जहां अलग अलग राज्यों की परंपराएं, संस्कृति, विभिन्न राजनीतिक स्वरूप हमारी लोकतांत्रिक शक्ति को दर्शाते हैं। आज भारत दुनिया में एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा लोकतंत्र और व्यवस्थित और प्रभावी हो। इसी परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव, यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, वरन विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ हमारा एक सशक्त कदम है। आइए हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां लोकतंत्र की ऊर्जा बिखरी हुई ना हो, एक शुद्ध, जहां विकास की गति चुनावी बाधाओं में ना अटके, जहां शासन व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से चलती रहे, जहां देश के संसाधनों की बर्बादी ना हो, वरन जनहित के कार्यों में उसका सदुपयोग हो। एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका अर्थ है देश में होने वाली सभी चुनाव को एक साथ आयोजित करना। यह कोई नया विचार नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 1967 से लेकर 1952 से 67 तक सभी चुनाव सफलतापूर्वक एक साथ कराए गए थे। बात जब 2047 तक एक विकसित भारत की करते हैं तो यह आवश्यक है कि हमारा चुनावी प्रणाली और भी अधिक आधुनिक और प्रभावी हो। एक राष्ट्र एक चुनाव के कुछ सकारात्मक पहलू, इससे राष्ट्र को आर्थिक बचत होगी, निरंतर विकास बाधा रहित होता रहेगा, देश को एकता का चुनाव एक प्रतीक बनेगा, मतदाता भागीदारी बढ़ेगी, एक साथ होने वाले चुनाव से लोगों में उत्साह और जागरूकता बढ़ेगी, परंतु अपने साथ ही अपनी चुनौतियां भी लाती है। धन्यवाद। पार्टिसिपेंट इज नेहा कुमारी, सीरियल नंबर 30। नेहा कुमारी 13 सीरियल नंबर। नमस्ते आदरणीय विधायकगण और मेरे साथियों, आज मैं यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा करने जा रही हूँ कि यह किस तरह से विकसित भारत को एक विकसित राष्ट्र
भविष्य के निर्माता शिक्षकगण को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिस कारण से हमारे देश के छात्रों का भविष्य घोर अंधकार में जा रहा है। इतना ही नहीं साथियों, एक चुनाव चलते जाता है, फिर अगला आता है। जैसे ही चुनाव की निरंतरता खत्म होती है, अगला लगा ही रहता है। इस प्रकार भारत हमेशा ही चुनावी मोड में बना रहता है, जिस कारण प्रशासनिक एवं नीतिगत व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, जिससे कि इस देश के युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे देश के युवा सो चुके हैं। हमारे साथ हाथ मिलाकर जाग जाइए और एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन कीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव से हम व्यर्थ के खर्चों को रोककर चुनाव में प्रत्येक वर्ष होने वाले करोड़ों खर्चों, समय, संसाधनों की बचत कर इसे नई योजनाएं, नई नीतियों में लगाकर अपने देश को तरक्की और विकास का एक नया निर्माण का स्वरूप दे सकते हैं। इस देश के युवा ही इस देश के आने वाले वर्तमान और भविष्य है। अब हम युवाओं को ही देश के बारे में अग्रसर होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि युवा नहीं भविष्य बना पाए तो भारत का भविष्य घोर अंधकार में चला जाएगा। एक बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, वही दूसरे में हमारे देश के युवा इस प्रकार सो रहे हैं। अंततः मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राष्ट्र के संसाधनों को अभी व्यर्थ न बनाना है, राष्ट्र के संसाधनों को यूं व्यर्थ न बनाना है। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति को हमें मिलकर लाना है, मिलकर लाना है। जय हिंद। 3 सीरियल नंबर रोशन कुमार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने समस्त अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायकों को क्रीड़ा प्रदान महोदय, मैं रोशन कुमार, बिहार राज्य समस्तीपुर जिले का निवासी, आप सभी के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपने विचारों को व्यक्त करने को आज उपस्थित है। सभापति महोदय, जैसा कि अभी तक हमारे भाई बहनों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का खर्चा बचता है। संविधानिक जिस प्रकार से संविधान को बदला जा रहा है, संविधान बदल के एक राष्ट्र एक चुनाव का आयाम लाया जा रहा है, उसी प्रकार मेरी सरकार से विनती है कि जिस प्रकार आप वन नेशन वन इलेक्शन का स्वरूप भारत में लागू करने जा रहे हैं, उसी प्रकार वन नेशन वन एग्जामिनेशन लाए। एक कानून यह भी बनाए उन बलात्कारियों को जो बलात्कारियां देश में प्रतिदिन अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं और देश का कानून ऐसा है कि सब कुछ होते हुए उनको उनकी सजा होती है, उनको माफ करना पड़ता है। वहाँ दें जब देश का खर्चा बचता ही तो इतने जो पैसे हमारे देश के पास हैं, तो भारत पूर्व से जैसे सोने की चिड़िया रही है, वर्तमान में जो हमारे भारत के पास खजाने हैं जो इन योजनाओं पर बर्बाद किए जाते हैं। जैसा कि नेता कहते हैं आचार संहिता का पालन करने से हमें विकास की दौड़ को रोकना पड़ता है, तो आप आचार संहिता के कानूनों में बदलाव करें ना। विकास के दौर में आप आके रैलियाँ करते ही क्यों हैं? रैलियों को अपनी इतने कम रैलियों कराएं, अपने पैसों के उचित संसाधनों पर खर्च करें। महोदय, सब कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, तो भारत में जैसा कि पूर्व अभी गोविंद कमेटी का कहना है, सर्वप्रथम पैसों की बचौती। पैसा कैसे बचेगा? आप देश नहीं विदेश में हर बार दौरा करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा विकास के लिए? विकास के पैसों से आप बोलते हैं कि इतना खर्च हो रहा है, उतना खर्च हो रहा है, तो आप एक टैक्सेशन लगाए ना। एक टैक्सेशन क्यों नहीं लगाते हैं भारत में? वन नेशन की जगह वन टैक्सेशन लगाना चाहिए, जिससे पैसा बचेगा ना कि। और दूसरा तथ्य ये देते हैं कि संविधान को जैसे 18,626 पन्नों के अनुकूल में गोविंद कमेटी के द्वारा सबमिट किया है, उसमें इनका कहना है कि कम से कम 15 पर संविधान के अनुच्छेदों का उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट आप अगले संविधान जैसे वर्तमान स्थिति भारत की है उसके लिए भी संविधान का अमेंडमेंट करें, ना कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। कभी सत्ता प्रतिपक्ष तो कभी विपक्ष, दोनों अपने फायदे के लिए भारत के संविधान के, भारत के लोग सभी को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हम भारतीय दिन प्रतिदिन इस सत्ता पक्षियों के प्रति अपनी मूर्खता को बढ़ाते जा रहे हैं और अपना मौलिक विकास खोते जा रहे हैं। महोदय, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का विकास होता ही है तो क्या कर लेगा भारत आगे जाकर? ये तो तब भी कहेगा कि हम अपने विकास के दौर से पन्नियों से योजनाओं से ही दिखाएगी। और मूलतः अगर हम इसे धरातल पर देखें तो भारत का विकास अभी भी भूतल पे, गांव स्तरों पे, गलियारों में सब वैसा नहीं
नाम मीसा कुमारी है और मैं उमा पांडे महाविद्यालय परिषद की छात्रा हूँ। सम्मानित अतिथिगण और प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय एक देश एक चुनाव के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव भारतीय चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की महत्वपूर्ण प्रस्तावना है। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में चुनावी मोड़ में रहता है। इससे कई प्रकार की विकास की प्रक्रिया में अवरोध होता है। तो इसका उद्देश्य है विधानसभा लोकसभा के चुनावों को एक साथ कराकर बार बार होने वाली चुनाव प्रक्रिया को कम करना और विकास की प्रक्रिया में देश को आगे लाना। हालांकि ये कोई नई आइडिया नहीं है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 से 1970 तक हमारे देश के चुनाव इसी प्रक्रिया से होते थे, परंतु कुछ विधानसभाओं के भंग हो जाने के कारण यह चक्र रुक गया। और भी विश्व में और भी जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्वीडन जैसे देश की वन नेशन वन इलेक्शन पे कार्यरत है। अलग अलग लोगों के वन नेशन वन इलेक्शन पे अलग अलग विचार है जो इसके लाभ एवं चुनौतियों पर बल देते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जो सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके ही सबसे अच्छी फैसला लेती है। इसके उपलक्ष्य में हमारे पूर्व प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसका कार्य इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करना है। एक देश एक चुनाव में कई लाभ है, जैसे एक देश एक चुनाव बार चुनाव होने से हमारे चुनावी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया एक बार हो जाए तो यह खर्चों को कमी की जा सकती है। प्रशासनिक कार्य में निरंतरता बनी रहेगी तथा वोटर टर्नओवर भी बढ़ेगा। बहुत सारे मतदाता हैं जो अपने रोजगार के लिए अपने शहर से कहीं दूर रहते हैं, वो बार अपने यहाँ वोट देने नहीं आ पाते हैं। तो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, जिससे हमारे वोटर की भी संख्या बढ़ेगी तथा बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर जो चुनाव के समय अपना समय चुनावी कार्य में लगा देते हैं। अगर ये चुनाव एक साथ एक टर्न हो जाएंगे तो वो अपना बहुमूल्य समय अपने कार्य को दे पाएंगे। इसके हालांकि इसकी बहुत सारी चुनौतियाँ भी है, परंतु सेंटर और स्टेट के आपसी तालमेल से हम इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, एक देश एक चुनाव का उपलक्ष्य है चुनावी प्रक्रिया को सही करना एवं देश के लोकतंत्र को कुशल और मजबूत बनाना, जिससे हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन पाए और अपने खोए हुए सम्मान को फिर वापस कर पाए। प्रतिभागी है विकास कुमार, सीरियल नंबर 18। विकास कुमार। सीता की भूमि, गिरे की माटी संस्कृति जिसकी नारी है, ज्ञान कला और प्रेम की गंगा मिथिला की पावन भूमि पर मैं विकास कुमार विकसित भारत युवा आयोजक युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार समस्तीपुर एवं सरलता सजगता विद्वता के प्रतिमूर्ति माननीय मंडल के सदस्यगण, यहाँ उपस्थित आप तमाम मेरे युवा साथियों, आज का विषय एक भारत एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की ओर एक कदम पर मैं अपना भाव प्रकट करने आया हूँ। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया, there is a room to changes every time। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए हमेशा सुधार की आवश्यकता पड़ती है और उसी सुधार के बदौलत हमारा देश हमारा राष्ट्र एक महान एक विकसित एक सुगम एक मजबूत एक सशक्त स्वावलंबी भारत की ओर अग्रसर हो सकता है। हमारे भारत की जितनी भी चुनौतियां हैं अलग डेवलप्ड नेशन
से कुछ अलग चुनौतियाँ हैं, वो डेवलप हो चुका है, वो विकसित हो चुका है, हमें विकसित होना है। इसलिए हमारा कंपैरिजन कभी भी उस देश से नहीं बनता। जर्मनी, थाईलैंड, इन तमाम देशों से हमारा कंपैरिजन कतई नहीं बनता। इसलिए हम उन्हें ना देखकर हम अपनी चुनौतियों को देखें, उन चुनौतियों को समाधान करें। जितनी भी रिपोर्ट 2017 में नीति आयोग के द्वारा रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई है, सारी में इसकी सफलताओं के साथ साथ इसकी चुनौतियों को भी दर्शाया गया है। चुनौतियाँ को हम सिर्फ सही ढंग से, प्रभावी ढंग से उतार सकें तो उन चुनौतियों के बदौलत हमारा देश एक राष्ट्र, एक चुनाव की पथ पर अग्रसर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। यह दिन दूर नहीं है हमारे देश को विकसित होने में, क्योंकि बहुत नज़दीक समय इससे एक नीति आयोग में रिपोर्ट में कहा गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को कराने से कम 45% जो मौजूदा खर्च हो रहे हैं, 45% का खर्च कमी आएगी। उन बचे हुए रुपयों का, उन बचे हुए मनी का हम अपने शिक्षा, किसी भी देश का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है उस देश को महान राष्ट्र बनने में। धन्यवाद। Thank you, Vikas. Next participant is Pragya Push, serial number 19, 19 serial number. Pragya Push. उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा पुष्प विमेंस कॉलेज से आज के हमारे विषय एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की ओर एक कदम पर अपने विचार रखने जा रहे हैं। भारत के संविधान के केंद्र में है आजादी, चुनाव व लोकतंत्र। जहां एक ओर नियमित चुनाव लोकतांत्रिक सफलता को चिन्हित करते हैं, वहीं हमारे देश में लगातार बनी रहने वाली चुनावी व्यस्तता
Good morning. My warm greetings to respected dignitaries. I am Sonia from Women's College, Samastipur. It is an honor to speak on a concept that has the potential to radically transform the landscape of governance of India. One nation, one election. It is a vision for a future that promises efficiency, stability, and progress. It is an India that aims to streamline the electoral process and a step towards a developed India. Ladies and gentlemen, let me ask you a question before I begin. What is the need of one nation, one election? At present, India facing significant amount of time and resources of conducting multiple elections. One nation, one election, a solution to these challenges by consolidating elections into an event. The solution for it are first, cost benefiting. By help of this, we can reduce the cost of election which government has to face on conducting elections multiple times. We can use this fund for conducting or redirecting these into essential sectors like healthcare, education, infrastructure, and poverty alleviation. Sardar Vallabhbhai Patel once said, "It is not the size of the country, but the unity of its people which make it great." Second, centralized focus. Third, policy continuity. And the last, reduction in election fatigue. There are also some challenges to implementation. Constitutional amendment, strategic development, and logistic challenges. One nation, one election is not just an electoral reform, it is a visionary step towards creating a more stable, efficient India. Jai Hind. Thank you so much. प्रतिभागी है रानी कुमारी, सीरियल नंबर 21। रानी कुमारी। नेताओं के गले में हार और गरीब के थाली में पुलाव आ गया। नेताओं के गले में हार और गरीब के थाली में पुलाव आ गया। लगता है फिर से मेरे देश में चुनाव आ गया। मैं रानी कुमारी जीएमआईटी कॉलेज महापुर समस्तीपुर BA थर्ड सेमेस्टर
जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अभिव्यक्ति आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, चलो राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय गणमान्य अतिथि एवं प्रिय युवा साथियों, आज मैं बिहार की उसी धरती पे खड़ा हूँ जिसने वैशाली में लोकतंत्र को जन्म दिया। बतौर एमएसएस वॉलंटियर मैं सदैव बदलाव के राह पर चलने का सपना देखता हूँ और आज का जो हमारा ये विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव, यह तो हमारे भारत के लोकतांत्रिक सफर में बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। महोदय, हमारे देश में हर साल कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर निगम, तो कभी पंचायत चुनाव होते रहते हैं। नेता भाषण देते हैं, रैलियां होती हैं और इन सब चक्करों में यदि कुछ रुका रहता है तो वो है हमारे देश का शासन और विकास। महोदय, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे नेता देश चला रहे हैं या साल भर चुनावों का महोत्सव मना रहे हैं। जब दुनिया के बड़े देश आने वाले 100 सालों की प्लानिंग कर रहे हैं, तब हमारे नेता अगले इलेक्शन को जीतने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। क्या इस प्रकार हम 2047 तक विकसित भारत को गोल को अचीव करेंगे? क्या इसका कोई समाधान है? मेरे विचार में इसका एक ही समाधान है महोदय। यदि हम प्रत्येक 5 साल में एक बार सभी चुनावों को एक साथ संपन्न करा लें तो न साल भर सड़कें रैलियों से जाम होंगी, न हर महीने न्यूज चैनलों पर चुनावी भाषण चलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार को काम करने का पर्याप्त समय मिलेगा। बात मतभेदों की आती है महोदय, तो भारत की यह परंपरा रही है कि हम सभी प्रकार के मतभेदों का स्वागत करते हैं। जब भारत में यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया था, विरोध तब भी हुए थे, लेकिन आज पूरा देश यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी भारतीयों ने एक सपना देखा है कि वर्ष 2047 में हमारा देश आजादी के 100 वर्ष एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे करेगा। लेकिन यह सपना तब तक साकार नहीं हो सकता है जब तक हमारे नेता भारत के विकास कार्यों को छोड़कर चुनावी रैलियों में उलझे रहेंगे। अब हमें राजनीति नहीं, काम चाहिए। अब हमें वादे नहीं, परिणाम चाहिए। एक बार चुने, 5 साल चलाए, चुनावी तमाशा नहीं, सतत विकास कराए। महोदय, वन नेशन वन इलेक्शन, यह कोई डिबेट का विषय नहीं है, यह तो हमारे भारत के वर्तमान की आवश्यकता है। इसे लागू करने का यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सृष्टि सलोनी, सीरियल नंबर 27। सृष्टि सलोनी, 27 सीरियल नंबर। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारी लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी
चित्रकार रंगों की मदद से अपनी तस्वीर बदल सकता है। चित्रकार से अपनी तस्वीर बदल सकता है। चित्रकार रंगों की मदद से अपनी तस्वीर बदल सकता है। अगर हम देश की युवा ठान लें तो देश की तस्वीर बदल सकता है। प्रबुद्ध श्रोतागण एवं मंच पे विराजमान मंचासीन, मेरा नमस्कार। मैं राहुल कुमार श्रीमती कॉलेज महमपुर समस्तीपुर संस्कृत नमस्कार छात्र हूँ। महोदय, मैं विकसित भारत युवा संसद 2025 का मुख्य विषय एक राष्ट्र एक चुनाव। महोदय, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में एक बार चुनाव हो। बार बार चुनाव होने से करोड़ों का खर्चा, मैनेजमेंट की दिक्कत, परेशानियां, समय की बर्बादी, सरकार भी इससे हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। क्यों ना महोदय हम ऐसा करें कि पूरे देश में एक बार चुनाव हो। लोकसभा, विधानसभा, निर्वाचन, पंचायत आयोग, नगर निगम सभी का चुनाव एक बार हो। लोग घर से निकले पूरे 5 साल में एक बार और अपने अनुसार इच्छा अनुसार मतदान करके और घर चले जाए। एक बार चुनाव होने से सरकार के पास पूरे 4 साल बचेंगे तो देश के विकास में वही पैसा खर्च होगा। वही पैसा उद्योग धंधा, रोजगार एवं अलग अलग तकनीक टेक्नोलॉजी में हमारा सरकार अपना समय देगी। महोदय, बार बार चुनाव होने से सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। सरकार जीतने के लिए और जो भी विपक्षी दल होते हैं वो उटपटांग किस्म के वादे कर लेते हैं और ऐसे ऐसे वादे जनता में कर लेते हैं कि उनको पूरा करने का मतलब है कि सरकारी सिस्टम को बर्बाद करना। जीतने के चक्कर में तो वादे कर लेते हैं, अगर वो वादे नहीं करेंगे तो जीतेंगे नहीं। तो क्यों ना एक कहावत बनती है कि ना रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। न होगी बार बार चुनाव, न वो झूठे वादे करेंगे, न बार बार परेशानियाँ होगी, हमारा समय बचेगा, पैसा बचेगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना, और सिर्फ उनका ही सपना नहीं, हम सभी युवा का सपना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।